ایک فقیہ نے صرف عقل، مشاہدے اور دینی بصیرت سے آواز کی ایسی تشریح پیش کی جو آج بھی حیران کر دیتی ہے۔ آواز حقیقت میں کیا ہے؟ کیا آواز فنا ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ گراموفون پر قرآن سننے کے مسئلے سے یہ پوری سائنسی بحث کیسے جڑی ہوئی ہے؟ آج سے 100 سال پہلے جب گراموفون جیسی نئی مشین آئی تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اس میں قرآن مجید سننا کیسا ہے؟ تالیاں بجاتے ہیں تو دو ہاتھ ٹکراتے ہیں، ہوا ہلتی ہے اور آواز نکلتی ہے، جب ڈھول بجتا ہے تو اس کی کھال ہلتی ہے، اور اس معاملے میں سائنس کا موقف اعلیٰ حضرت کے موقف کی کمپلیٹ تائید کرتا ہے۔ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ذریعے وضاحت کر دی کہ آواز ہے کیا اور وہ بنتی کیسے ہے۔ کیا آواز واقعی ختم ہو جاتی ہے یا وہ کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتی ہے؟ یہ صرف آواز کی کہانی نہیں، یہ حقیقت کی داستان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بغیر کسی آلے کے صرف منطق سے یہ بات سمجھا لی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بر صغیر کے ایک عالم دین نے آج سے 300 سال پہلے آواز، ساؤنڈ کی حقیقت ایسی بیان کی تھی جس کی تصدیق آج جدید فزکس کرتی ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اگر میں یہ بھی کہوں کہ اس وقت نہ الیکٹرانک مائکروفون تھے، نہ جدید لیبارٹریاں، نہ آسلوسکوپ اور نہ ہی یونیورسٹیوں کی جدید ریسرچ، پھر بھی ایک فقیہ نے صرف عقل، مشاہدے اور دینی بصیرت سے آواز کی ایسی تشریح پیش کی جو آج بھی حیران کر دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آواز حقیقت میں کیا ہے؟ کیا آواز فنا ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ آواز دور جا کر کمزور کیوں ہو جاتی ہے؟ اور گراموفون پر قرآن سننے کے مسئلے سے یہ پوری سائنسی بحث کیسے جڑی ہوئی ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک دلچسپ بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ کیا آواز اصل میں ہے، اور اس حوالے سے اعلیٰ حضرت کی کیا عقلی اور سائنسی تحقیق ہے۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو راشد علی اتاری مدنی کی اعلیٰ حضرت کے ایک فتویٰ کی تخلیص اور تصحیح کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جب گراموفون جیسی نئی مشین آئی تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اس میں قرآن مجید سننا کیسا ہے۔ اس سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز کی پوری حقیقت بیان فرمائی۔ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ آج کی جدید سائنس سے بہت ملتا جلتا ہے، لیکن اس سب میں جو انہیں ممتاز بناتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب انہوں نے خود مشاہدہ، منطق اور دینی علم سے نکالا۔ اس وقت انڈو پاک میں جدید لیبارٹریاں نہیں تھیں، مگر انہوں نے از خود یہ بات دریافت کر لی۔ آئیے سادہ الفاظ اور روزمرہ کی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آواز دراصل کیا ہے؟ پہلے اعلیٰ حضرت کی لکھی عبارت کو پڑھتے ہیں، ذرا مشکل ہوگا، غور سے سنیے گا، اس کو آسان کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آواز اس شکل و کیفیت مخصوصہ کا نام ہے جو پانی یا ہوا وغیرہ جس نرم و تر میں قرا اور قلا سے پیدا ہو، اس کا اور تمام حوادث کا سبب حقیقی محض ارادہ الہی ہے، اور دوسری چیز اصلاً نہ مؤثر ہے نہ موقوف علیہ، اور آواز کا ظاہری اور عادی سبب قریب قلا اور قرا ہے سے پیدا ہوتی ہے۔ آواز ہو یا پانی جیسے نرم جسم میں دو چیزوں کے زور سے ٹکرانے سے جسے وہ قرا سے تعبیر کرتے ہیں، یا الگ ہونے سے جسے وہ قلا سے تعبیر کرتے ہیں، پیدا ہونے والی ایک خاص شکل اور کیفیت ہے۔ اب ذرا مثال دیکھتے ہیں۔ جب آپ تالیاں بجاتے ہیں تو دو ہاتھ ٹکراتے ہیں، ہوا ہلتی ہے اور آواز نکلتی ہے، جب ڈھول بجتا ہے تو اس کی کھال ہلتی ہے، اور اس معاملے میں سائنس کا موقف اعلیٰ حضرت کے موقف کی کمپلیٹ تائید کرتا ہے۔ سائنس کے مطابق آواز تب پیدا ہوتی ہے جب ہوا یا
लिक्विड या किसी जामद शय में मौजूद पार्टिकल्स को वाइब्रेट यानी हिलाया जाए। जैसे अब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और हम इस हवा के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाते हैं जो कि हमारी सांस से बाहर आ रही होती है, और वो पार्टिकल्स फिर और पार्टिकल्स को हिलाते हैं। यूं आवाज का एक तसलसल या एक लहर पैदा होती है। हेलो। इसीलिए और सैयारों पर मसलन सूरज पर होने वाले धमाकों की आवाज जमीन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जमीन और सूरज के दरमियान खला है यानी हवा का फुकदान है, और वो पार्टिकल्स जिनके हिलने से, वाइब्रेट करने से आवाज आगे जाती है, वो मौजूद ही नहीं। इसकी मिसाल एक तजुर्बे से है जो कि बहुत मशहूर है, और वो ये है कि एक जार के अंदर एक बेल लगाई जाती है और उस जार के ऊपर पंप होता है जिसके जरिए आगे चलकर उस जार के अंदर से हवा खींची जाती है। तो जैसे ही बेल ऑन की जाती है, क्योंकि शुरू में जार में हवा मौजूद होती है, तो बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता हवा खींची जाती है तो आवाज हल्की होना शुरू हो जाती है, और एक टाइम आता है कि वो आवाज बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और ऐसा उस वक्त होता है जब हवा के पार्टिकल यानी ज़रात बिल्कुल खत्म हो जाएं, यानी निकाल दिए जाएं थ्रू पंप जार से। तो ये तजुर्बा इस चीज की अच्छी मिसाल है कि आवाज दरअसल अपने फैलाव और मकसूद तक पहुंचने के लिए पार्टिकल्स यानी ज़रात की मोहताज है। मौलाना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके जरिए वजाहत कर दी कि आवाज है क्या और वो बनती कैसे है। अब तक हमने देखा कि आला हजरत ने आवाज की पैदाइश और इसके फैलने की वजाहत की जो जदीद साइंस से हैरत अंगेज हद तक मुताबिकत रखती है को बयान किया, लेकिन असल हैरत अभी बाकी है। अब हम इस सवाल का जवाब जानेंगे जिसने 100 साल पहले उलमा और अहले इल्म को भी हैरान कर दिया था। क्या आवाज वाकई खत्म हो जाती है या वो किसी न किसी शक्ल में बाकी रहती है? और यही वो नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर आला हजरत ने ग्रामोफोन पर कुरान सुनने के मसले का ऐसा जवाब दिया जो आज भी इल्मी हलकों में काबिले तवज्जो है। आइए आगे बढ़ते हैं। आवाज खत्म हो जाती है या बाकी रहती है? ये बहुत अहम बात है। आला हजरत फरमाते हैं, जबकि आवाज कुरंदा की सिफत नहीं बल्कि मलाए मकतीफ से कायम है, तो इसकी मौत के बाद भी बाकी रह सकती है। यानी टकराना तो फौरन खत्म हो जाता है, लेकिन आवाज की वो खास शक्ल हवा में बाकी रहती है। मिसाल देते हैं, एक लिखने वाला मर जाता है मगर उसका लिखा हुआ किताबों में बरसों तक पढ़ा जाता है। जबान भी कलम की तरह है, उसको साइंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहती है, और यह है तवानाई यानी एनर्जी ना तो खुद पैदा की जा सकती है और ना तबाह की जा सकती है। हाँ, अलबत्ता उसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। तो आला हजरत की यह बात इसी मौक़िफ़ की तायीद करती है, यानी आवाज़ जब पैदा होती है तो जैसा कि बयान हो चुका, वो किसी भी शक्ल में मौजूद पार्टिकल्स को हिलाती है या वाइब्रेट करवाती है, और वो ये तवानाई या ये वाइब्रेशन आगे और पार्टिकल्स को देते हैं। यानी मनासिर खुद वाइब्रेट करते हैं बल्कि और पार्टिकल्स को भी करवाते हैं, और वो आगे औरों को और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी वाइब्रेशन या हिलना कम होता जाता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। जैसा आप एक का आधा, फिर आधे का आधा, फिर उसका आधा, ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मकदार कभी भी सिफर यानी जीरो नहीं होगी। आला हजरत यहाँ इस चीज का इशारा कर रहे हैं कि आवाज धीमी तो हो जाती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती। इस हिस्से में आला हजरत की एक और बहुत अहम बात है जिसको मैं उजागर करना चाहूंगा, और वो ये है कि आप फरमाते हैं कि आवाज बोलने वाले की सिफत नहीं। यहाँ पे सिफत से मुराद है कि बोलने वाले पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो उस जरिए पे डिपेंडेंट है, उस मीडियम पे डिपेंडेंट है जो उस आवाज को लेके जाता है। मसलन पानी या कोई जामिद शय उस पर डिपेंड करती है कि जिसके पार्टिकल्स को हिलाकर, जिसके ज़रात को वाइब्रेट करवाकर वो मंजिल तक पहुंचे। आवाज कहाँ होती है और दूर क्यों धीमी लगती है? उन्होंने बताया कि आवाज कान के बाहर भी हवा में मौजूद होती है और लहरों के जरिए आती है। जितना फासला बढ़ता है, लहरें
कमजोर पड़ती जाती हैं। मसलन करीब खड़ा शख्स चीखे तो आवाज जोर से सुनाई देती है, दूर चला जाए तो आवाज धीमी और बेवजह हो जाती है, जब फासला बहुत ज्यादा हो जाए तो बिल्कुल सुनाई नहीं देती। साइंस में इसे एटेन्युएशन और इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। आवाज की ताकत फासले के मुरब्बे के हिसाब से कम होती है। न्यूटन और बाद के साइंसदानों ने इस पर काम किया। आला हजरत ने बगैर किसी आले के सिर्फ मंतक से ये बात समझा ली। लेकिन सवाल ये है कि वो हमें सुनाई क्यों नहीं देती? इसका जवाब है हमारी समाज के लिए आवाज की लहर का एक खास हद तक तवानाई वाला होना जरूरी है, यानी एक खास फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। आवाज की कॉपियां और दोबारा सुनाई देना आसान अल्फाज में इको। उन्होंने ये भी बताया कि असल आवाज से हवा में कई कॉपियां बनती हैं जो फैलती रहती हैं। लहरें रुक जाएं तो आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन दोबारा लहरें बने तो वही आवाज फिर सुनाई देती है, नई नहीं बनती। जब आप किसी खुली जगह पर जाएं, मसलन पहाड़ों में, और वहां पर जाकर ऊंचा बोलें तो आपको अपनी ही चीख दोबारा सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है कि आवाज की लहरें जो कि हवा के जरिए चल रही होती हैं, वो जामिद अशिया मसलन पहाड़ से टकराकर वापस आती हैं और आपको सुनाई देती हैं। इसको इको कहते हैं। मिसाल जैसे रेडियो पर गाना रुक जाए और दोबारा चले तो वही गाना सुनाई देता है। ये सिर्फ आवाज की कहानी नहीं, ये हकीकत की दास्तान है कि जब कुरान, सुन्नत, अक्ल सलीम और गहरा मुशाहिदा एक जगह जमा हो जाए तो इंसान ऐसे नताइज तक पहुंच सकता है जो अपने जमाने से बहुत आगे हों, जो कि आला हजरत के बारे में डॉक्टर कदीर खान ने खुद कहा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम आला हजरत की एक और साइंसी तहकीक पर गुफ्तगू करेंगे, जिसे जानकर शायद आप जदीद साइंस को एक नए जाविये से देखना शुरू कर दें। आला हजरत ने ग्रामोफोन पर कुरान सुनने को जायज करार दिया क्योंकि आवाज हवा की सिफत है, शख्स की नहीं। उन्होंने 100 साल पहले जो कुछ लिखा वो आज की फिजिक्स से बहुत मिलता है। उन्होंने ये सब अज खुद दरियाफ्त किया, बगैर किसी जदीद साइंस की किताब के। ये उनकी जहानत, बसीरत और अल्लाह की अता करदा नेमत का सबूत है, और उनके इस इंडिपेंडेंट रीडिस्कवरी से ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की विदियत करदा अजीम नेमत यानी अक्ल और फिक्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह हम सबको उनके इल्म से फैज़ हासिल करने की तौफीक दे, आमीन। दुरूद व सलाम हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आज की वीडियो आपकी सोच का एक नया दरवाज़ा खोले तो उसे ज़रूर दूसरों तक पहुँचाइएगा। अनसुनी बातें, जव्वाद रज़ा खान। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।